Hello students, I welcome you all to today's session. I hope everybody is doing perfect at their places. So students, today's topic is celebrating festivals, यानी कि त्योहारों को मनाना. Learning topics: festivals, national festivals, birth anniversaries, religious festivals. Festivals. Festivals are a time of celebration. They brings joy and happiness. We share this joy and happiness with our family and friends. We visit our friends and relatives and exchange gifts. We wear new clothes, buy sweets and cook special dishes. तो फेस्टिवल्स, जैसा कि हम सबको पता है कि त्योहारों के टाइम में हम नए नए कपड़े पहनते हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को विजिट करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और स्वीट्स भी एक्सचेंज करते हैं, और ये एक बहुत ही एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और जॉय का माहौल होता है. National festivals. Independence Day. Independence Day is celebrated on 15th August every year. The main celebration is held at Red Fort in Delhi. Our Prime Minister hoists the national flag. He addresses the nation and delivers an important message. तो इंडिपेंडेंस डे, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, ये एक टाइप का नेशनल फेस्टिवल होता है, राष्ट्रीय त्योहार. ये 15 अगस्त के दिन हर साल मनाया जाता है. दिल्ली के लाल किले एरिया में इसको मनाया जाता है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश को संबोधित करते हुए एक स्पीच भी देते हैं. रिपब्लिक डे. Republic Day is celebrated on 26 January every year. The main function is held at Kartavya Path in New Delhi. Our president hoists the national flag. There is a grand parade in which the armed forces, the police force, school children and folk dancers take part. Republic Day, जो गणतंत्र दिवस है हमारे देश का, वो 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, और इस दिन कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में परेडें निकलती हैं, आर्म्ड फोर्सेस पार्टिसिपेट करते हैं, जो पुलिस फोर्स होती है वो पार्टिसिपेट करती है, और साथ ही साथ काफ़ी सारे फोक डांसेस अलग अलग स्टेट्स के और अलग अलग स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं. गांधी जयंती. Plays on the life of Gandhi ji are staged to celebrate Gandhi Jayanti. His favorite bhajans are sung on this occasion. Our teachers inspire us to follow the teachings of Gandhi ji. Gandhi ji taught us to be truthful and follow the path of non-violence. तो गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, इस दिन गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, और उन्होंने जो जो चीज़ें हमें सिखाई हैं वो सारी चीज़ें हमें दोबारा बताई जाती हैं, और इनके ऊपर जो प्लेज हैं वो भी मनाए जाते हैं. बर्थ एनिवर्सरीज, यानी कि अलग अलग लोगों की, फेमस पर्सनालिटीज की बर्थ डेट्स. टीचर्स डे. It is celebrated on 5th September every year. It is the birthday of Dr. S. Radhakrishnan, who was the second president of India. We celebrate this day in our schools. Government honors distinguished teachers on this day with national and state awards. 5th September. 5 सितंबर को हर साल, जिस दिन हमारे देश के जो सेकंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनका बर्थडे आता है, और इसी दिन हम टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं. इस दिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग टीचर्स को, गवर्नमेंट टीचर्स को अलग अलग किस्म के अवार्ड्स देकर उनको सम्मानित करती है. चिल्ड्रंस डे. Children's Day is celebrated on 14th November. It is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of our country. 14 नवंबर को हर साल इस दिन मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, यानी कि बाल दिवस. इस दिन हमारे जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बर्थडे को कमेमोरेट करते हुए चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है. रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी कि धार्मिक त्योहार. Dasahara. This festival is linked to Lord Rama. It marks the victory of good over evil. तो ये जो फेस्टिवल है दशहरा, ये लॉर्ड रामा यानी कि भगवान राम को संबोधित करते हुए मनाया जाता है, और इस दिन माना जाता है कि बुराई पर जो अच्छाई की जीत हुई थी उसको सेलिब्रेट करा जाता है. Dasahara falls on the 10th day after 9 days of fasting and praying called Navratri. On this day, the effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnad are burned.
Durga Puja is an important festival of Bengal and other eastern states. तो दशहरा जो है वो 10वें दिन में मनाया जाता है, 9 दिन की लगातार फास्टिंग यानी कि व्रत के बाद और पूजा के बाद। इन 9 दिनों को कहा जाता है नवरात्रि। और 10वें दिन एफिजीज यानी कि बड़ी बड़ी जो मूर्तियां होती हैं रावण की, कुंभकर्ण की और मेघनाद की, इनको बनाया जाता है और इनको जलाया जाता है। एंड दे मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। और दुर्गा पूजा जो करी जाती है इन 9 के 9 दिनों में, ये ज्यादा फेमस है बंगाल में और हमारे देश के ईस्टर्न पार्ट में। गुरुपूरब। Gurupurab is a celebration of an anniversary of a guru's birthday marked by the holding of a festival. On Gurupurab, people take out processions and eat langar. Langar is a common meal of all rich and poor without any difference. तो गुरुपूरब जो है वो सिख्स का फेस्टिवल होता है। इस दिन ये अपने गुरुओं को सम्मानित करते हुए बड़े बड़े प्रोसेशंस निकालते हैं और हर किस्म के लोग, चाहे गरीब हों या अमीर हों, एक साथ जमीन पर बैठ के एक कॉमन किचन से खाना खाते हैं जिसको लंगर कहा जाता है। Christmas. It falls on 25th of December every year. It marks the birth of Jesus Christ. Christmas tree is decorated with gifts, stars and toys. Children believe that Santa Claus bring gifts for them. तो क्रिसमस जो कि एक क्रिश्चियंस का त्यौहार है, अलग अलग देश के हिस्सों में बनाया जाता है और पूरी दुनिया में भी मनाया जाता है। इस दिन माना जाता है कि सांता क्लॉज आते हैं और बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। Eid. On this day, people wear new clothes and offer prayers at the mosques. After the prayers, they embrace each other and say Eid Mubarak. A special sweet dish called सेवई is prepared on this day. तो ईद जो कि मुस्लिम्स का फेस्टिवल होता है, इस दिन सारे मुस्लिम्स मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं। और इस दिन एक स्पेशल डेलिकेसी बनाई जाती है जिसका नाम है सेवई। सो स्टूडेंट्स, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको आज काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके जितनी भी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ।